Welcome back, class 12 students. Today we are going to solve few questions based on potential. So see what is given in the question, that there is a point charge q, and due to it it is kept at point A, and there is a this much electric field, and this is the potential, right? So let us say this is point charge q which is placed at point A, right? And potential at point B is given 12 joule per coulomb, and electric field is given, this is potential, and electric field is given 24 newton per coulomb. You need to read the question before solving. I have already read the question, so I have written this thing quickly. Anyway, now we know the formula for electric field due to a point charge is 1 upon 4 pi epsilon naught. I hope you know this formula. By seeing the previous videos you must have. And potential V is 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r due to a point charge. These both formula are applicable for a point charge. If you divide E by V, what are we going to get? 1 upon 4 pi epsilon naught q by r square divided by 1 upon 4 pi epsilon naught and q by r. So if we continue this, what are we going to get? E by V equal to, if we solve this, 1 upon 4 pi epsilon naught will be cancelled, and Q will also be cancelled. So 1 upon r square multiplied by 1 upon r means r upon 1. This is r square, right? So E upon V is equal to 1 upon r, right? So this is the formula. I will use this formula to calculate r. R means distance, because let us say this is, I am writing this as r, AB equal to r. So we have to find out the distance, calculate the distance AB. So find E is given 24, V is given 12 equal to 1 upon r. So when we solve this, r is going to be 0.5 meter. Also calculate the magnitude of charge. Now I need not to solve this part. I am leaving it on you, because when you take this value of r and if you place either in this equation or in this equation, okay, place just value of r here or here, we have value of V or E, you will get value of charge, magnitude of charge. So I am not solving this part. I'll move on to the next question. Next question is this example, a charge of 24 microcoulomb. So first of all, as I always say, whatever is given, write down that value. 24 microcoulomb means 24 into 10 to the power minus 6 coulomb charge is given to us. Fine. Then given to a hollow metallic sphere of radius 0.2 meter. Radius is given 0.2 meter. So before I solve the question, I will explain you the concept. Although I have previously explained, let us say this is value of r. Then we know the formula for potential. V is 1 upon 4 pi epsilon naught q by r. And this is the value anywhere inside. This is applicable, और आई शुड राइट, मैं इसको थोड़ा सा बदल देता हूँ लैंग्वेज को. पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट. पोटेंशियल इज कांस्टेंट एंड इज सेम एट एनी पॉइंट inside the sphere to the surface. मेरे कहने का मतलब ये है, अगर मैं इस लाइन से क्लियर ना कर पा रहा हूँ तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी पोटेंशियल सरफेस पर होगा वही पोटेंशियल अंदर भी होगा. ठीक है ना? तो इसका मीनिंग जो पोटेंशियल इस पॉइंट पर है, और भी इसको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं,
कि जो भी पोटेंशियल मान लेते हैं पॉइंट ए पर है वही पोटेंशियल बी पर होगा, वही पोटेंशियल सी पर होगा, तो इन सभी जगहों पर पोटेंशियल सेम होगा। मेरा कहने का मतलब ये है ए पर, बी पर, सी पर, ठीक है ना। चाहे तो इसको मैं एक्सप्लेन इस तरह से करता हूँ कि लेट अस से पॉइंट मान लेते हैं जनरल, इफ़ दिस इज एट अ डिस्टेंस x, देन फॉर x ग्रेटर देन 0 एंड लेसर, सॉरी उल्टा लगा दिया मैंने ये, एंड लेसर देन r और इक्वल टू r, लेसर देन r और इक्वल टू r, ठीक है। x इज ग्रेटर देन 0 बट x इज लेसर देन और इक्वल टू r, v is constant and it is 1/4 pi epsilon naught q by r। आई थिंक इससे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत इसको नहीं है। अब क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। 24 माइक्रोकूलम q की वैल्यू दी है, हमें r दिया है, हमें v निकालना है एट द सरफेस, वही आएगा जो कि एट अ डिस्टेंस 0.1 सेंटीमीटर। ये दोनों का आंसर सेम ही होना है, राइट। चलिए सॉल्व भी कर देता हूँ मैं इसको। तो v इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 इंटू क्यू 24 माइक्रोकूलम एंड डिवाइडेड बाय r की वैल्यू क्या दी हुई है, रेडियस इज गिवन 0.2 मीटर, सो रेडियस इज 0.2 मीटर। इसको सिंप्लीफाई करिए एंड यू विल गेट दी आंसर, ओके। Now let us go to the next question. Question number 9. This is not actually question number 9, just written 9 example. I have taken the pics from the book. This is NCERT question. Okay, so read the question first of all. Two charges 3 10 to the minus 8 and minus 2 10 to the minus 8 are located 15 सेंटीमीटर अपार्ट। ठीक है, सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। 3 10 to the power minus 8 कूलम्ब एंड minus 2 10 to the power minus 8 कूलम्ब आर लोकेटेड 15 सेंटीमीटर अपार्ट। ये 15 सेंटीमीटर हो गया हमारा, जिसको हम 0.15 मीटर भी लिख सकते हैं। एट वॉट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ज़ीरो। तो ठीक है, हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है ज़ीरो कहाँ होगा इस लाइन में जॉइनिंग पर। तो देखिए, हो सकता है ये डॉट डॉट वाली लेफ्ट लाइन पर हो, यानी येलो पर हो सकता है ये डॉट डॉट वाली रेड लाइन पर हो, राइट साइड में इसका मतलब है ना, या हो सकता है इस बीच में कहीं हो, या हो सकता है तीनों जगह हो। समझते हैं इस बात को, ठीक है ना। We know that formula for V is 1/4 pi epsilon naught Q by R। इसका मीनिंग ये हुआ कि V की वैल्यू R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर R कम होगा तो V ज़्यादा होगा, लेकिन साथ ही साथ Q पर भी डिपेंडेंट है एंड V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखने को है कि ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज पोटेंशियल विल बी पॉजिटिव, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज पोटेंशियल विल बी नेगेटिव। मान लेते हैं ये कोई पॉइंट है ए, यहाँ कोई पॉइंट है बी और यहाँ कोई पॉइंट है सी। तीनों पॉइंट के बारे में डिस्कस करता हूँ मैं। तीनों पॉइंट पर सोचते हैं कहाँ कहाँ पोटेंशियल ज़ीरो हो सकता है। ध्यान से सुनिएगा। सपोज एट ए पोटेंशियल इज ज़ीरो, ठीक है, विच इज़ एट अ डिस्टेंस एक्स। वैसे मैं बताऊं ए की तरफ ज़ीरो नहीं होने वाला है। चलिए उसको समझा देता हूं सॉल्व करने से पहले क्यों ज़ीरो नहीं होने वाला है। बिकॉज देखिए, ए पॉइंट काफ़ी पास में है या सबसे पास में है इस चार्ज के। किस चार्ज के? इस चार्ज के, यानी इसका पोटेंशियल यहाँ ज़्यादा आएगा और पॉजिटिव में आएगा। वाई? बिकॉज इट्स अ पॉजिटिव चार्ज। बी पॉइंट, सॉरी, जो ये चार्ज है, चलिए इसके नाम लिख देता हूँ जिससे ये इनको मुझे बोलने में आसानी हो। दिस इज़ Q1 एंड दिस इज़ Q2। तो Q2 चार्ज जो है वो नेगेटिव में है और ये दूर भी है, तो इसका आंसर जो होगा, इसका जो पोटेंशियल होगा ए पॉइंट पर, किसका? Q2 चार्ज की वजह से
ए पर जो पोटेंशियल होगा, एक तो ये चार्ज दूर है Q2, तो इसका पोटेंशियल कम आएगा, नेगेटिव में कम आएगा, नेगेटिव में। Q1 का पोटेंशियल ए पर ज़्यादा आएगा। इसका मीनिंग ये हुआ एट ए पोटेंशियल ड्यू टू Q1, अगर मैं उसको V1 नाम दे रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं बोल रहा हूँ पोटेंशियल ड्यू टू Q1, ठीक है, और V2 इज पोटेंशियल ड्यू टू Q2। तो V1 जो होगा इट विल बी ग्रेटर देन V2, V1 विल बी ग्रेटर देन V2। Although V2 is lesser than 0, V1 is greater than 0, V2 is lesser than 0। मीनिंग कहने का ये कि ये वैल्यू नेगेटिव में है, ये वैल्यू पॉजिटिव में है, ठीक है, लेकिन दोनों वैल्यूज़ इक्वल तो नहीं है, इसलिए V1 प्लस V2 कैन नॉट बी इक्वल टू 0। फाइन। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो इट इज़ वेरी गुड। अगर समझ में नहीं आई है तो आई विल बी ट्राइंग टू सॉल्व इट इन न्यूमेरिकल मैनर। वैसे समझ में आ गई होगी, मैं ये समझाना चाह रहा था जो भी, मैं चलो दोबारा भी समझा देता हूँ इस बात को। Q1 पास में है, यानी Q1 का पोटेंशियल V1 है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। Q2 दूर है तो इसका पोटेंशियल कम होगा, ठीक है, क्यों? क्योंकि दूर है और उसका मैग्नीट्यूड भी कम है चार्ज का। ये देखिए Q2 क्योंकि नेगेटिव में है तो उसका पोटेंशियल, ये मैंने जो लाइन लिखी है यहाँ पर रेड से सर्कल कर दे रहा हूँ मैं, देखिए रेड से सर्कल कर रहा हूँ, ये जो पोटेंशियल है क्योंकि नेगेटिव चार्ज की वजह से है तो ये नेगेटिव में होगा। Q1 पॉजिटिव चार्ज है तो उसका पोटेंशियल पॉजिटिव में होगा, लेकिन क्योंकि ये बहुत कम होगा कंपेरेटिव टू V1 तो दोनों का सम ज़ीरो नहीं आ पाएगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि एट ए पोटेंशियल कैन नॉट बी ज़ीरो। अच्छा, अब बी पॉइंट डिस्कस करते हैं। कैन इट बी ज़ीरो हेयर? यस इट कैन बी। वाई? बिकॉज बी पर बड़ा आसानी से सोच सकते हैं कि अगर हम बी पॉइंट को Q2 के पास कर दें, ए से थोड़ा दूर कर दें, सॉरी इस Q1 से थोड़ा दूर कर दें और Q2 से पास कर दें, तो Q2 का पोटेंशियल बी पर ज़्यादा हो जाएगा और Q1 का पोटेंशियल क्योंकि दूर है तो इक्वल हो सकता है, ठीक है, पॉसिबिलिटी है। तो एट देयर कैन बी पॉइंट लाइक दिस, और वो सॉल्व करके भी दिखाता हूँ। देखिए एट बी, मैं बिल्कुल लिखता हूँ एट बी पोटेंशियल ड्यू टू Q1, पोटेंशियल ड्यू टू Q1 विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, और सपोज ये डिस्टेंस जो है मैं उसको एज्यूम कर ले रहा हूँ इज D, तो Q1/D प्लस पोटेंशियल ड्यू टू Q2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0.15 मीटर माइनस D, सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं, ये नीचे लिखना था, Q2 डिवाइड बाय 0.15 माइनस D इक्वल टू 0। अब Q1 Q2 की मैं वैल्यू रख दूंगा, तो नेक्स्ट जो आएगा Q1 मीन्स 3×10⁻⁻8 बाय D प्लस Q2 मीन्स -2×10⁻⁻8 और 0.5 माइनस D इक्वल टू 0। अब आप इसको देखिए, 3×10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय D इक्वल टू 2×10⁻⁻8 एंड 0.15 माइनस D। आई होप इतने से आपको अब समझ में आ रहा होगा, काफ़ी क्लियर हो गया होगा कि अब D की वैल्यू यहाँ से ज़रूर निकल आएगी, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ आप ये सोच रहे होंगे शायद कि मैंने इस वाले पार्ट में ऐसा क्यों नहीं किया, करके देखते शायद आ जाए। कोई बात नहीं, तो ये आपको ड्यूटी है, करके देखिए एक बार। मुझे मालूम है नहीं आएगा, लेकिन एक बार आप करके देखिए, ठीक है, तो आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि नहीं आने वाला उसमें। 0.45 ओके माइनस 3D इक्वल टू 2D, तो 0.45 इक्वल टू 5D, यानी D की जो वैल्यू आ गई हमारी क्या रहेगी, 0.09, राइट, मीटर। दैट मीन्स 9 सेंटीमीटर फ्रॉम Q1। चलिए इसको भी कर देता हूँ एक समझने के लिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
इसकी जो वैल्यू है देखिए किस तरह से आएगी। वैल्यू मैथमेटिक्स से तो आएगी तो जरूर, Q1/x एंड प्लस x की जो वैल्यू आएगी यहाँ पर ये नेगेटिव में आएगी, ध्यान दीजिएगा। 1/4πε0 Q2, और अब ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी Q2 से 0.15 प्लस एक्स, 0.15 प्लस एक्स। देखिए क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगी 0.15 प्लस एक्स मीटर में, तो इन दोनों का सम 0 होना पड़ेगा। इट मीन्स Q1 प्लस एक्स प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 0.15 प्लस एक्स इक्वल टू 0। Q1 Q2 की वैल्यू रख देते हैं, 3 10⁻⁻8 बाय एक्स, माइनस आ जाएगा ये क्योंकि यहाँ पर माइनस चार्ज है, 2 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय 0.15 प्लस एक्स इक्वल टू 0। तो सिंप्लीफाई कर दें, 3/x, एक स्टेप मैंने कम ही कर दिया है इसमें, 10⁻8 को ख़त्म कर दिया है सॉल्व करते टाइम, एक स्टेप रिड्यूस कर दिया है। ठीक है, तो देखिए क्या आएगा 0.45 प्लस 3x इक्वल टू 2x, करेक्ट। 45, तो ये क्या आएगा 0.45 इक्वल टू माइनस एक्स। तो ये जो वैल्यू आई x क्या आ गई, माइनस में आ गई है। इसका मीनिंग ये हुआ कि उसको हमें अपोजिट साइड में लेना था, तो वही जो है ये आएगा इस तरह से। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन गलत होने की पॉसिबिलिटी मुझसे होती है कई बार, वैसे होपफुली नहीं होगी। इसी तरह से आप पॉइंट सी के लिए कर लीजिए अपने सेल्फ। अब आप करिएगा, इसको मैं नहीं कर रहा हूँ। सपोज ये डिस्टेंस y ले लीजिए, तो अब पोटेंशियल इस पॉइंट पर एक लाइन लिख दे रहा हूँ, चलिए क्विक, 1/4πε0, कलर बदल के लिख देता हूँ या हाईलाइट कर दूंगा चलिए बाद में। और Q1 से डिस्टेंस हो जाएगी Q1 डिवाइडेड बाय 0.15 प्लस y, Q2 का पोटेंशियल हो जाएगा 1/4πε0 Q2/y, और दोनों का सम 0 के इक्वल। इस बात को बस आप सिंप्लीफाई कर लीजिए और आपको यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि एक और पॉइंट। ठीक है, फाइन। कुछ हिस्सा में छोड़ दिया है मैंने इसमें, एक समझ लीजिए। सॉल्यूशन पूरा किया है हर जगह, आप इंटरप्रिटेशन कुछ एक में जानबूझकर छोड़ रहा हूँ जो आप समझिएगा उसमें। अगर मुझे ज़रूरत लगेगी अगली बार किसी डाउट में तो दोबारा समझाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर। ओके, पहले मैं स्क्वायर का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं स्क्वायर में, और इसको भी मैं पूरा सॉल्व नहीं करूँगा, बस एक जनरल फॉर्मूला बना के आपको छोड़ दूंगा और ये आप खुद करेंगे। मान लेते हैं ये आपका स्क्वायर है जिसमें ये सभी साइड्स a हैं, और Q1, Q2, Q3 and Q4 are the 4 charges kept at 4 vertices, and the vertices I am writing A, B, C and D. These are 4 vertices and center is O, where we have to find out the potential. Fine. Any net potential will be the potential due to charge Q1 plus potential due to charge Q2, potential due to charge Q3 and potential due to charge Q4. Right? This is the potential due to Q1, similarly due to Q2, this is due to Q3 and this is due to Q4। ये चारों का सम, बिकॉज इट्स अ स्केलर क्वांटिटी तो बस सम ही निकालना है, कोई डायरेक्शन तो होती नहीं है। क्या होगा 1/4πε0 सभी में आएगा, तो एक साथ मैं कॉमन ले रहा हूँ। Q1 बाय डिस्टेंस OA, Q2 बाय डिस्टेंस OB, Q3 बाय डिस्टेंस OC एंड Q4 बाय डिस्टेंस OD। ये चारों का हमें सम निकालना है बस। अब आप OA, OB, OC, OD निकाल ही लेंगे होपफुली। डायगोनल जो आएगा क्या होता है, डायगोनल इज ऑलवेज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाइड बाय √2, पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं हम।
ठीक है ना। तो उस वो आ जाएगा आपका a√2 आ जाएगा डायगोनल, और डायगोनल का हाफ लेना है हमें। OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC इक्वल टू OD इज इक्वल टू a√2 एंड डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए साइड भी दी गई है √2 मीटर, ठीक है। तो a की जगह आप √2 रख के √2 इंटू √2 बाय 2, चलिए ये भी कर दिया है, ये 1 मीटर। तो ये सभी जो हैं क्या जो आपके ये OA OB OC और OD सभी की वैल्यू 1 मीटर आ गई है। अब तो ये बहुत ही आसान हो गया है। चलिए मैं एक लाइन और लिख दे रहा हूँ, अब आसान हो ही गया है। तो Q1 Q2 Q3 Q4 4 वैल्यूज़ और रख दें और हमारा काम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। ये बस एक Q1 Q2 Q3 एंड Q4 की वैल्यू रखनी है आपको, और ध्यान रखना इसको आपको कन्वर्ट करना है माइक्रो कूलम से कूलम्स में। तो सभी को कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻⁶ से मल्टीप्लाई करना होगा। चलिए उसको भी एक लाइन में सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि v इक्वल टू 10⁻⁻⁶ का मल्टीप्लाई सभी में हुआ और हमने उसको कॉमन निकाल लिया बाहर। तो a पर चार्ज है 100, b पर है -50, c पर है 20 और d पर है -60, ठीक है ना। तो ये सिंप्लीफाई हो गया है। अब एक ही लाइन बची है जिसको तो मैं छोड़ दूंगा, अब नहीं करूँगा। इतना बोल्ट आंसर उसका आ जाएगा। एग्जाम्पल नेक्स्ट देखते हैं अब। 2 चार्जेस -q एंड +q, यानी ये डायपोल है, आर लोकेटेड एट पॉइंट्स 0 0 -a एंड 0 0 +a, यानी एक 3 डायमेंशनल स्पेस में हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। ठीक है ना। और इसको मुझे थोड़ा बैक एक्सटेंड कर रहा हूँ मैं। क्यों एक्सटेंड कर रहा हूँ? क्योंकि चार्जेस रखे हैं 0 0 -a, यानी ये 0 0 -a हो गया आपका। यहाँ रखा गया है -q, यहाँ रखा गया है -q चार्ज, और ये हो गया आपका 0 0 +a, यहाँ रखा गया है +q चार्ज, ठीक है ना। ये एक डायपोल हो गया है। इस डायपोल पर चार्जेस रखे गए हैं, ओरिजिन x एक्सिस, y एक्सिस एंड इज z एक्सिस। फाइन हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम P700, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया है। अब देखिए कैसे, अभी बस समझ में आ जाएगा आपको। ये है एक पॉइंट P जो कि है 700 से Q, यहाँ होगा पीछे -300, ठीक है। अब आपको पता है कि दीज एक्सेस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये एक्सेस कैसे हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं ईच अदर से, यानी ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, सभी 90 हैं। अब और डायग्राम में क्या बनाऊँ मैं इसको, ये भी 90 है और ये जो लाइन है यहाँ पर भी 90, सभी 90 डिग्री हैं। तो P एंड Q आर पॉइंट्स on equatorial line of dipole। डायपोल कौन सा है हमारा यहाँ पर? जो +q और -q चार्ज रखे हुए हैं, ठीक है ना, a और b पर। दिस इज पॉइंट a -q वाला, और दिस इज पॉइंट b, डायपोल a b, ठीक है। एंड वी नो potential at each point on equatorial line due to a dipole is 0। इसका मीनिंग ये हुआ कि पोटेंशियल एट P इज 0, पोटेंशियल एट Q इज 0, ठीक है। इसको चलिए थोड़ा समझा भी देता हूँ, चलिए इसकी डिटेल में। ये आपका डायपोल है -q +q, और ये आपको मैं बना दे रहा हूँ इस पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन। ये जो लाइन है इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। इस लाइन पर कोई भी पॉइंट चुन लीजिए, जो भी पॉइंट लेना हो पॉइंट ले लीजिए। मान लीजिए यहाँ ले लिया या यहाँ ले लिया, इस पॉइंट का नाम A है, B है, C है, कोई भी पॉइंट ले लीजिए। पोटेंशियल एट ईच, पोटेंशियल A B
बी सी सी एंड डी कहीं भी ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए, ईच इट विल बी जीरो, ईच इट विल बी जीरो, एट ईच इट विल बी जीरो। जब सभी जगह पोटेंशियल जीरो ही है तो पोटेंशियल डिफरेंस तो हो ही नहीं सकता। समझ रहे हैं ना आप? अगर आप समझ चाह रहे हैं कि मैं इसको सॉल्व भी करके दिखाऊंगा पोटेंशियल जीरो क्यों है, तो चलिए वो भी करके दिखाता हूँ। सपोज ये डिस्टेंस जो है ये एक्स है, ये एक्स राइट, ये डिस्टेंस भी एक्स होगी, ओके। तो v ड्यू टू माइनस चार्ज विल बी 1/4 minus q by x. This is due to minus charge. v due to plus charge will be 1/4 q by x, ये प्लस में होगी। अब दोनों को आप खुद सोचिए कि अगर ऐड कर दिया जाए v नेट कितना आएगा, v प्लस v माइनस, दोनों की वैल्यू इक्वल है और नेगेटिव में है, एक पॉजिटिव में है, तो ये जीरो आएगा। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी मच क्लियर, ठीक है ना। तो इस तरह से हर एक पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन will have zero potential and potential difference between any two points will always be zero, ठीक है। अब मैं पोटेंशियल डिफरेंस क्यों समझा रहा हूँ इतनी देर से, आप ये सोच रहे होंगे, जबकि क्वेश्चन में तो पूछा गया है वर्क डन, हाउ मच वर्क इज डन। तो वैसे आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी वी नो दैट पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू बाय क्यू नॉट। इसको और अगर डिटेल में बताऊं तो मैंने इसको जब पोटेंशियल समझाया था तो मैंने बताया था वी वी माइनस वी ए इज इक्वल टू, या चलिए इस लाइन को नहीं समझाता हूँ, नहीं तो इस पॉइंट क्वेश्चन में भी ए और बी पॉइंट है, आप कंफ्यूज होंगे। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू बाय क्यू नॉट। तो वर्क डन इज डेल्टा वी इंटू क्यू नॉट, और डेल्टा वी जीरो है किन किन पॉइंट्स के बीच में, पी और क्यू के बीच में, ठीक है। दिस पॉइंट इज एट जीरो पोटेंशियल, दिस पॉइंट इज ऑल्सो जीरो पोटेंशियल। तब जो दोनों ही जीरो पोटेंशियल हैं तो ये जीरो हो गया, चार्ज कोई भी हो अब फर्क नहीं पड़ता, तो वर्क डन विल बी जीरो। वैसे इसको बहुत डिटेल में मैंने समझा दिया, इतना ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ठीक है। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी मच क्लियर, फाइन। एक बात ध्यान रखना है जो मैंने यहाँ समझाई, इसको चलिए हाईलाइट कर दे रहा हूँ मैं, कि वर्क डन ये जो है इक्को पोटेंशियल जो पोटेंशियल है एट एनी पॉइंट, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन विल बी जीरो, ठीक है ना। ये वाला हिस्सा जो मैंने हाईलाइट दोबारा किया है, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। काफ़ी कलर भी कर दिया इसको, फाइन। 2 point charges q and minus 2q are kept d distance apart. Find the location of the point relative to charge q at which potential due to the system of charges is zero. ये पहले तरह का क्वेश्चन है, इसमें एक चार्ज q है, ये चार्ज -2q है। अभी समझ जाएंगे आप बहुत ही जल्दी कि हाँ ये वही क्वेश्चन है जो मैंने सबसे पहले बीच में एक सॉल्व किया था, पहला तो नहीं था। ए और बी हैं, ये दोनों डी डिस्टेंस दूर रखे गए हैं। फाइंड द लोकेशन ऑफ द पॉइंट रिलेटिव टू चार्ज क्यू, इस पॉइंट के अबाउट हमें डिस्टेंस निकालनी है या लोकेशन निकालनी है उस पॉइंट की जहाँ पर पोटेंशियल ज़ीरो होगा, ठीक है। फिर से समझते हैं, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड कम है, तो अगर हम यहाँ एक कोई पॉइंट लें तो वहाँ पोटेंशियल ज़ीरो मिल सकता है। क्यों मिल सकता है? क्योंकि क्यू चार्ज कम है मैग्नीट्यूड में, ये चार्ज मैग्नीट्यूड में ज़्यादा है 2q जो है, तो दूर होने के बावजूद पोटेंशियल इक्वल आ सकता है नेगेटिव में, और एक पॉइंट बीच में भी मिल सकता है हमें कहीं पर, जो कि ऑब्वियसली पास होगा पॉजिटिव क्यू चार्ज के और इससे दूर होगा। तो चलो 2 पॉइंट्स ले लिए मैंने, ए और बी। इस तरफ पॉइंट मिलेगा नहीं, राइट साइड में इस तरफ नहीं मिलेगा, है ना। आपको लेके करना है तो कर लीजिए, जैसे मैं पहले भी समझा चुका हूँ उसी तरह से। यहाँ पर जो पॉइंट लेंगे उसकी वैल्यू नेगेटिव में आएगी। चलिए ए पॉइंट ले लिया आपने, और ये ए पॉइंट जो है, अच्छा ए पॉइंट आप पहले यहाँ पर भी मान चुका हूँ मैं, तो इसको अब बदल देता हूँ, ये ए पॉइंट नहीं है, इस पॉइंट को कुछ और रख देता हूँ। लेट अस से दिस पॉइंट इज़ पी,
और ये बी पॉइंट यहाँ ले चुका था, तो यहाँ इसको क्यू नाम लिख रहा हूँ अब ठीक है। ये जो डिस्टेंस है ए पी, इस डिस्टेंस को नाम ले लिया मैंने एक्स, ये डिस्टेंस है मेरी डी। ठीक है, तो पोटेंशियल एट पी, पोटेंशियल एट पी विल बी ड्यू टू प्लस क्यू एंड ड्यू टू माइनस टू क्यू ऑल्सो। तो जरा जल्दी में करूँगा मैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू और डिस्टेंस है एक्स, माइनस टू क्यू और डिस्टेंस है डी प्लस एक्स, दोनों के इक्वल 0 कर दीजिए। हमें x की वैल्यू मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ x एंड q। ठीक है, x की वैल्यू मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ d, q के टर्म्स में भी नहीं, है ना। तो ये क्या मिलेगा हमें, 1/x माइनस 2/d प्लस एक्स इक्वल टू 0। ठीक है ना, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, d प्लस एक्स माइनस 2x इक्वल टू 0। तो d इज इक्वल टू x, यानी x की वैल्यू जो आएगी वो d के इक्वल आएगी। ये हुआ एट पॉइंट P। अब अगर मैं एट पॉइंट Q करूं, ये हो गया P के लिए, एट Q, पोटेंशियल एट Q, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज Q, डिस्टेंस हो गई D, चार्ज माइनस 2Q, डिस्टेंस हो जाएगी अब D, सॉरी एक और गलती कर दी मैंने छोटी सी, इस पॉइंट, ये मैं D जब पहले ले चुका हूँ तो यहाँ D नहीं लेना चाहिए मुझे। ठीक है, इसको D की बजाय मैं यहाँ Y ले रहा हूँ, Y। तो यानी कि ये जो है डिस्टेंस Y हो जाएगी, समझिए, क्योंकि मैं यहाँ पहले D क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था और मैंने D दोबारा ले लिया था। ओके, तो ये क्या आ जाएगी डिस्टेंस, अब ये बची हुई डिस्टेंस क्या आ जाएगी, D माइनस वाई। तो D माइनस वाई इक्वल टू 0। इसको भी सिंप्लीफाई करिए आप, तो 1/y माइनस 2/d माइनस वाई इक्वल टू 0। ऑब्वियसली 1/y इक्वल टू 2/d माइनस वाई एंड d माइनस वाई इक्वल टू 2y, एंड ये क्या होगा आपका 3y इक्वल टू d। तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी d/3। ठीक है ना, तो इस तरह से आपका ये भी क्वेश्चन सॉल्व हुआ। यानी P और Q पर जो पोटेंशियल 0 है विद रिस्पेक्ट टू Q चार्ज, हमें डिस्टेंस निकालनी थी। तो एक ये पॉइंट मिल गया जिसकी डिस्टेंस x इक्वल टू डी आई है ना, यानी ये d दूरी पर ही होगा, और दूसरी पॉइंट Q की डिस्टेंस आ गई जो कि d/3 आई है। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक फील्ड E, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दो क्वेश्चन है, जो दो क्वेश्चन अलग अलग हैं एक्चुअली, इक्वल टू 20 I कैप प्लस 30 J कैप न्यूटन पर कूलॉम्ब एग्जिस्ट इन फ्री स्पेस इफ द पोटेंशियल एट ऑरिजिन इज टेकन 0, डिटरमाइन द पोटेंशियल एट पॉइंट 2। ओके, पोटेंशियल फाइन, तो dV इक्वल टू माइनस EdR ये होता है। E की वैल्यू दी हुई है हमारे पास, डॉट प्रोडक्ट करना है बस हमें अब, इनटू, और dV का मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन origin and that another point like this, into डॉट प्रोडक्ट में क्या लिख देंगे, 2 मीटर मीन्स 2I कैप 2J कैप। आई थिंक वेक्टर आपने ध्यान से थोड़ा पढ़ा होगा। ठीक है, ये जो पॉइंट है 2 मीटर, तो 2 मीटर यानी 2I कैप और ये 2J कैप है ना, तो ये आएगा आपका 40। ठीक है ना, और ये 60। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 100 वोल्ट। ठीक है,
this should be 100 volt, that's it. Let me think, why are they giving minus 100 volt? Potential at origin is taken 0, and in the direction of okay, if we integrate like this, I have made a mistake. When we integrate, after integration, this will be V and 0 V. So this will be V minus 0. That means V equal to, okay, I made mistake over there and 0 minus V I have written. Fine. So V equal to minus 100 volts. Similarly, another question, electric field is given by A by x cube I cap. Write an expression of the potential in the region assuming the potential at infinity to be 0. Fine. So potential V equal to E dr, right? Integration we have to do now. So in A by x cube, now they are asking in the region, तो कोई बात नहीं, पोटेंशियल के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का ले लेंगे और डी आर मीन्स डी एक्स लेकर चलेंगे अब हम, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, इस जो फंक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वो एक्स के टर्म्स में दिया हुआ है। तो हमारे लिए क्या आएगा, ये तो कांस्टेंट है, एक्स टू द पावर माइनस 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 3 प्लस 1. So this will give us a x to the power minus 2 divided by minus 2. That means this will be a minus में a upon 2x square. Fine. Potential at infinity to be 0. It means infinity to be 0 like this. Okay. So this will be like this and like this. So 0 माइनस, दोनों क्वेश्चन में देखिए ऊपर क्या है, पोटेंशियल एट 0, सॉरी पोटेंशियल एट ऑरिजिन 0 लिया था, यहाँ पर पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू भी 0 लिया है। तो इस तरह से हमारा ये बन गया। पहले हम इसको डी वी लिखेंगे, फिर बाद में वी आएगा, ठीक है ना, इस तरह से। और लिमिट रखने के बाद ये टर्म बनेगा जैसा कि ऊपर हुआ है। इसको मैं इस तरह से कर सकता हूँ, v and 0, सॉरी v and 0 लाइक दिस, देन दिस टर्म बिकम्स 0 माइनस वी। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ। ये पूरे क्वेश्चन जो मैं समझाना चाह रहा था पोटेंशियल पर जो बेस्ड थे। अब नेक्स्ट मैं अपना जो वीडियो बनाऊँगा उसमें पोटेंशियल के तो हो गए कंप्लीट। अब कैपेसिटेंस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा आपके साथ। Thank you.